ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਟੀਚਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਲੈਣਗੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु। थोड़ा जो पीछे रख सकते हैं, बस ठीक, इनको खड़ा रख सकते हैं। इसमें माइक थोड़ा सही नहीं है, माइक स्पीकर चल बोलो मिल गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछली क्लास च ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 3 ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟ यानी कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो जेकर वेखिए ते ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾ यार खां जोगी साहब ने लिखा है, तारीख में लिखा है किधर जोश कारदार। तारीख माने कहते हैं हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ जोश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ तारीख में लिखा है किधर जोश कारदार, सतगुर बढ़ाते ही गए आगे को राहवार, हम राह रह गए थे गरज चंद जानिसार, शहजादों में साथ थे अजीत और जुझार, जोरावर और फतेह जो दादी के साथ थे, दाएं की जगह चल दिए वो बाएं हाथ थे। हुण हुजूर देखते ने साहिबजादियां नूं, हर चंद की तलाश न पाया निशान कहीं, छोड़ा था जिस जगह पे नहीं थे वहां कहीं, पा जाए फिक्र था न उन्हें दुश्मन कहीं, माता के साथ चल दिए शहजादगा कहीं, लगते जिगर हुजूर के जिस दम बिछड़ गए, पांव वहीं गफूर मोहब्बत से गड़ गए। गफूर माने रब, रब दे इश्क दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे पैर थम गए ने। फौरन मराक बे में गए पीरे खुश ख्याल, फौरन मराक बे में गए ध्यान मुद्रा दे विच, फौरन मराक बे में गए पीरे खुश ख्याल, 14 तबक का कर लिया मालूम पल में हाल। तबक माने दिशाओं, फुरमाए जान निसारों से क्यों होते हो निढाल, माता के साथ चल दिए कुर्बान होने लाल, बुनियाद में धर्म की चुनेंगे उदू उन्हें, उदू माने दुश्मन, बुनियाद में धर्म की चुनेंगे उदू उन्हें, करतार चाहता है करे सुरखुरु उन्हें, हमने भी उस मुकाम पर जाना है जल्द तर, जिस जा पे तुमको अपने कटाने पड़ेंगे सर, होंगे शहीद लड़कर ये बाकी के 2 पिसर, रह जाऊंगा अकेला मैं कल तक लुटा के घर, पहले बाप कटाया अब बच्चे कटाऊंगा, नानक का बाग खूने जिगर पे खिलाऊंगा। ये कह के फिर हुजूर तो चमकौर चल दिए, हालत पे अपनी कुछ ना किया गौर चल दिए, करतार के ध्यान में फिर फौर चल दिए, राजी हुए रजा पे बहर तौर चल दिए, जो कुछ वहां पे बीती ये लिखना मुहाल है। जोगी साहब कहते हैं चमकौर साहब ने जो बीती है वो लिखना मुहाल है, ये मरसी या सुनाना तुम्हें अगले साल है। मतलब एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जोगी साहब 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਦੀ। ਤਾਈਓ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਜਾਣਾ, ਬੜੂ ਮਾਜਰਾ, ਬੂਣ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਜੰਗਲ। ਇਹ 3 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 2-3 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸੰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਚਾਨੰਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ रही जिंदगी तो अगले बरस लिख के लाऊंगा, अरशद से बढ़ के मरसिया सबको सुनाऊंगा, सतगुर के गम में रोऊंगा तुमको रुलाऊंगा, दरबारे नानकी से सिला इसका पाऊंगा, जोरावर और फतेह का इस दम बयां सुनो, पहुंचे बिछड़ के हाय कहां से कहां सुनो, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए, अब्बा भगा के लश्करे शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शौक जंग में, अपना ख्याल तक नहीं तीरों तुफंग में। ਮਤਲਬ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। जब रन अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जो जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, अब्बा कभी माता कभी भैया मनाएंगे, हमको गले लगा के कहेंगे वो बार बार, मान जाओ पर हम नहीं मानेंगे जिन्हार। जिन्हार माने कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इकरार लेंगे सबसे भुलाना न फिर कभी, बारे दिगर छोड़ के सताना न फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना न फिर कभी, हम कह देते हैं हमको यूं रुलाना न फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बेइख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। माता गुजर कौर जी दी अखां दे विच हंजू आ गए ने। कहती थी मैं लेके किस तरफ को जाऊं, बेटे को और बहुओं को या रब मैं कैसे पाऊं, लगते जिगर के लाल ये दोनों कहाँ छुपाऊं, तुर्कों से राजपूतों से क्यों कर इन्हें बचाऊं, विपदाए जायफियों, जायफियों माने होता है बुढ़ापा, विपदाए जायफ, विपदा ये जायफियों में क्या मुझ पे पड़ गई थी, कौन सी घड़ी मैं पिसर से बिछड़ गई। पिसर माने पुत्र बेटा। हुण गंगू रसोईया मिलदा है उन्हां नूं। गंगू कहता है कि माता जी आप जी मेरे घर चलो। ते गंगू दी भी कहानी बड़ी रुचिकर है। कुछ लोग की कुछ इतिहासकार गंगू नूं बड़ा पुराना गुरु घर दे विच जदों ये आया है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 16 ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ
ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਗੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੰਗੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰਸੋਈ ਦੀ। ਇਹ 17 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਗੂ ਬਾਮਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੁਹੇੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇੜੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਹੇੜੀ। ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੇੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। गंगू रसोईया है फकत साथ रह गया, ले दे के रहबरी को ये हयात रह गया। हयात माने अफसोस। अफसोस ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ समय आ गया है कि ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ है। आते थे शेर सामने गर्दन को ढाल के, माता जी सोचते ने कि आते थे शेर सामने गर्दन को ढाल के, तकते हिरन भी आज हैं आंखें निकाल के, नौरंग हैं तमाम जमाने की चाल के, तेवर हैं बदले हुए रण में हर एक शिगाल के। शिगाल माने की दर, उन्होंने भी आज तेवर बदले हुए ने। दरपेश अनकरीब कोई इम्तिहान है, खतरे में दिख रही मुझे बच्चों की जान है। ते मनो मन सोचते ने कि प्यारे पति को पहले ही हूं मैं कटा चुकी, कुदरत तेरी है सबर मेरा आजमा चुकी, लेकिन ये दो समर है मेरे नौ निहाल के, बेटे हैं दोनों सरवरे फौजे अकाल के, रखकर इन्हें कलेजे में आंखों में डाल के, बेटे की लेकर जाऊं मैं अमानत संभाल के, बेटे का माल है ये बहू की कमाई है मेरी लाख फिर भी ये दौलत पर आई है। रब रब जी वल हाथ जोड़ के माता जी कहते ने कि मंजूर इस घड़ी जो तुझे इम्तिहान है, हाजिर बजाए पोतों के दादी की जान है, हूँ सुरखरू बहू से यही दिल में ध्यान है, बीका न इनका बाल हो डर ये हर आन है, वरना जवाब दूंगी मैं क्या इनके बाप को, सदके करूं इनके सरों पे मैं अपने आप को। हुण अगे की हुंदा एक शब्द आता है अल किस्सा, मतलब आगे किस्सा इस प्रकार है। खेड़ी में जा विराजे ये अलकिस्सा शाम को, कोठा ब्राह्मण ने दिया था एक कयाम को। कयाम माने रुकण दे लई। दिन भर की दौड़ धूप से सबको थकान था, महफूज हर तरह से बसा हर मकान था, बरसों जिसे खिलाया था वो मेजबान था। ये वक्त आ गया है खतरे का, इस तरह नहीं वहमो निशान था, नौकर का घर समझ के वो बेफिक्र हो गए, लगकर गले से दादी के शहजादे सो गए। माता के साथ डिब्बा था एक जेवरात का, ललचा जिसे था देख के जी बदशिफात का। गंगू दा दिल आ गया माता जी दे नाल ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਸੀਗੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ, ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਗੰਗੂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਗੰਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जोगी साहब कहते हैं कि मोहरों का बदला और वो डिब्बा उड़ा गया, धोखे से ब्राह्मण वो खजाना चुरा गया, बदजात बदशिफात वो गंगू नमक हराम, टुकड़ों पे सतगुर के जो पलता रहा मुदाम। हमेशा जो टुकड़ियां पे पलता रहा सतगुर दे, दुनिया में अपने नाम को बदनाम कर गया, दुश्मन भी ना करता वो जो काम कर गया। माता जी कहते ने कि बेहतर था मांग लेता तू हमसे तमाम माल, लेकिन हुआ चुराने पर तुझको हराम माल। जिस घर का तू गुलाम था उससे दगा किया, ला करके घर में काम ये क्या बेवफा किया। जर के लिए सवाल ना क्यों बरमला किया, तू मैंने सवाल करता तू मांग लेता मैं तो सोना। हमसे तो जिसने भी जो मांगा अता किया, माता हूं कलगीधर की क्या तुझे खबर ना थी, तेरी तरह हमको तो जरा हिर्स जर न थी। हिरस माने मैनू तो कोई हवस नहीं सीगी सोने दी पैसे दी माया दी। वाहे गुरु के नाम पे सब मालो जर भी दूं, खलकत के फायदे को लुटा अपना घर भी दूं, गर्दन पति की दे चुकी हूं अब अपना सर भी दूं, खुशनू दिए अकाल को लखते जिगर भी दूं। मैं अपने पुत्र ਨੂੰ भी मार देंगी रब दे ਲਈ। पर गंगू हो जाता नाराज।
माता गुजर कौर जी दे मुखों ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि फिरते हो ਜਾਂ छुपाए हुए खुद नवाब से कहते हो मुझको चोर ये फिर किस हिसाब से चुपचाप घर से चल दिया फिर वो नमक हराम पहुंचा वो उस जगह पे मोरिंडा था जिसका नाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करता है तो कहता है कि राजों से अगर नवाब से दिलवाओ अगर इलाम आका की मां को बेटों को पकड़वाऊं ला कलाम तुरंत लाके मैं ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ अल किस्सा आगे किस्सा इस तरह है अल किस्सा लेके साथ वो जासूस आ गया पकड़ाने शाहजादों को वो मनहूस आ गया बच्चे उन्होंने आके गिरफ्तार कर लिए काबू बजबर बेकसो बेयार कर लिए कब्जे में अपने दुरे शाहवार कर लिए दुर्मान मोती शाही मोती दो कब्जे में अपने दुरे शाहवार कर लिए सरहंद साथ चलने को तैयार कर लिए पीनस थी न पाल की थी ना वो अंबारी थी बदबख्त लाए बैल की गाड़ी सवारी थी कोई रथ नहीं सीगा कोई घोड़ा गाड़ी नहीं सीगी कुछ भी सजावट नहीं सीगी साहिबजादियां ਨੂੰ ਖੁੰਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਗਾੜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਤੇ कपड़ा बनया जाता है जिद नाल मिर्चा भरी हुई सन एक है शहजादियां मासूम नन्हिया जिन्ना ते माता गुजर कौर जी ते वापरदा है सरहंद जाके पहुंचे हजार इज्जत राब से इज्जत राब माने तकलीफा सरहंद जाके पहुंचे लाख इज्जत राब से दो चार हाय जब हुए जालम नवाब से कमबख्त देखते ही ये बोला अताब से फिलहाल इनको कैद में रखो गुजाब से गुंबद था जिस मकान में ठहरे हुजूर थे दो चांद एक बुर्ज में रखते जहूर थे इंज जापदा है ठंडे बुर्ज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਾਂਦ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਦੇ ਨੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੌਣ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ फिर अपना सीस अगे कर देने ते आपस च क्योंकि कोई उथे सिख ते साथ नहीं सीगा आपस च एक दूजे नु नन्हे नन्हे हथियां नु जोड़ के फतेह बुलांदे ने कि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वजीर खान चढ़ जांदा है गोबिंद दे राज दुलाले चलदे कदतड़ियां ने बच्चियां ते बुज़दिल बंदे लौंदे हथकड़ियां ने ते गांदा डर की होना थंदियां दी तार नु सिक्खी ने वक्त पालिया शाही दरबार नु 3 दिन इसी तरह बीतते ने हुण किस्सा रोचक आंदा है कहदे भला मैं तीसरा दिन था जनाब को मतलब इस वक्त तक ना ते रोटी दी गई ना पानी दिता गया कहदे भला मैं तीसरा दिन था जनाब को बेआब कर चुकी थी अतश हर गुलाब को अतश माने प्यास तरसे हुए रिजक को जी और ख्वाब को ना बच्चे ठीक तरह सो पाए ना बिस्तर है ठंडा बुर्ज है क्योंकि उस वक्त क्लाइमेट चेंज इन्नी नहीं सी बहुत ठंड पैंदी सी तो नींद भी नहीं आई तरसे हुए थे रिज्क को जी और ख्वाब को इस रोज सुच्चानंद ये बोला नवाब को मंगवा के कलगी धर के पिसर इंतकाम लो मासूम इन्हें समझ के दया से नकाम लो बोला वो सुच्चानंद से बोला वो सुच्चानंद से ले आओ उन्हें शिताब शिताब मन शेती लाओ उन्होंने चरकों से सतगुर के जिगर है मेरा कबाब गोविंद ने गंवा दिया सब मेरा रौबदाब राजों के साथ मेरी भी मट्टी हुई खराब दुश्मन के बच्चे कत्ल करूंगा जरूर मैं कहने पे तेरे आज चलूंगा जरूर मैं बच्चों को लेने आए गरज चंद बेहया सरदार इनका कहते थे कि सुच्चानंद था ते माता जी ने जो तीजे दिन एक पंजाबी का शायर लिखता है कि 3 दिन रही कचहरी लगती कुछ भी पिया ना पल्ले सड़के कहते हुक्म सुनाते देव निहां दे थल्ले ओदे बाद 3 दिन तक जो कुछ वापरदा है साहिबजादे माता जी ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ देखूंगी उम्र भर के न प्यारी सूरतें मट्टी में मिलने वाली है मैं वारी मूरतें जाने से पहले आओ गले लगा तो लूं जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं केसों को कंघी कर लूं जरा मुंह धुला तो लूं प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं मरने से पहले तुमको मैं दूल्हा बना तो लूं रो रो के माता गुजरी ने आरास्ता किया यानी विदा किया तीरों कमा से तेग से पैरास्ता किया तो माता जी कह रहे हैं बेटे से पहले बिछड़ी थी तुम भी बिछड़ चले
बिगड़े हुए नसीब और ज्यादा बिगड़ चले, बेरहम दुश्मनों के तुम हाथों में पड़ चले, जंजीरे गम में मुझको यहाँ पर जकड़ चले, बेहतर था तुमसे पहले देती मैं प्राण को, दुख थे दुख से तुम्हारे दुख है सिवा मेरी जान को। ये कह के रोती जाती थी जारो जार मात, जोरावर और फतेह पे होती निसार मात, इस दर्जा रंजो गम में हुई बेकरार मात, कश खा के गिरने वाली थी बे इख्तियार मात। मतलब माता जी ने अपना होश नहीं सीगा ते ਉਹ ਬਸ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ साहिबजादे कहते हैं कि है शौक शहादत का हमें सबसे ज्यादा, तो सर भी हो कुर्बान तो नहीं रब से ज्यादा, वाहे गुरु से जान प्यारी नहीं हमें, भाती नहीं ये आरोजारी तुम्हारी नहीं हमें। ए माता जी आप जी दा रोना सानू पा नहीं सी रहा, रुखसत दो अब खुशी से जाने फिदा करें, दुनिया से जबरो जोर का हम खात्मा करें, हासिल सरों को दे के खुदा की रजा करें, नाम अपने बाप दादे का हम मरकर सिवा करें, तस्लीम करके दादी से पोते विदा हुए, तस्लीम करके दादी से बच्चे विदा हुए, दरबार में नवाब के दाखिल वो आ हुए, जिड़ा तीजे दिन दा वरतांत है ओ दिल दहलाने वाला है। वजीर खान उन्होंने लालच दिंदा है आखिरी बारी मजहब बदलन दा। साहिब जांदियां दे अगे एक मेज ते तीन चीजां रखियां जांदियां ने। पहली है क्योंकि 3 दिन तक कुछ खाण ਨੂੰ नहीं दिता गया, भुख अपने आप च बहुत बड़ा तसीहा ਹੁੰਦਾ है। खाण ਦੇ ਲਈ पकवान सीगे, ताजे फल सीगे। ते दूजी चीज है खिलौने, छोटे बच्चे ने शायद खिलौने करके इन्हां दा मन ललचा जाएगा। तीजी चीज सीगे शस्त्र, तीर कमान ते खंजर, छोट निक्कियां निक्कियां किरपाना। दोनों ही साहिबजादे शस्त्रां ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਗੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, कोई मसला नहीं है। शौक शहादत का हमें सबसे ज्यादा, 100 सर भी हो कुर्बान तो नहीं रब से ज्यादा। ते वजीर खान फिर आखिरी बारी एक कोशिश करता है, लालच दिंदा है दीन इस्लाम से जान दा, मौत तो बचण दा एक रास्ता खुलिया है जेड़ा उन्हां दे परदा दे आगे खुलिया सी। गुरु अर्जुन साहब दे आगे एको रास्ता खुलिया सी कि दीन इस्लाम कबूल कर लो जान बच सकती है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दे अगे जान बचण दा इको रास्ता खुलिया कि दीन इस्लाम कबूल कर लो जान बच सकती है। हुण आज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे नन्हे साहिबजादियां दे इको रास्ता खुलिया है। वजीर खान कहता है कि इस दम करो कबूल गर शाह के दीन को, फिर आसमां बना दूं तुम्हारी जमीन को, सदगुर के लाडलों ने दिया रौब से जवाब, आती नहीं है शर्म जरा तुझको ए नवाब, दुनिया के पीछे करता है क्यों दीन को खराब, किस जा लिखा है जुल्म दिखा तू हमें किताब, तालीम जोर की कहीं कुरान में नहीं, खूबी तुम्हारे शाह के ईमान में नहीं, पढ़ के कुरान बाप को करता जो कैद हो, मरना पिता का जिसको खुशी की नवैद हो। नवैद माने खबर, न्यूज। पढ़ के कुरान बाप को करता जो कैद हो, मरना पिता का जिसको खुशी की नवैद हो, कत्ले बरादरा कुल खानदान का कत्ल, कत्ले बरादरा जिसे मामूली सैद हो, सैद माने शिकार, उससे रहम की खलकत को क्या उम्मीद हो, मंगवा के बुलवा के दिल्ली तेग बहादुर की जान ली, हमने भी मरने की है तभी आन ठान ली, काम उसने भाइयों से किया था यजीद का, दारा का है मुराद का रुतबा शहीद का, हम साफ चाहते हैं कि अजल के दहन में जाएं, अजल माने मौत, अति चाहते ने आप मौत दे मुझ जान, हम साफ चाहते हैं कि अजल के दहन में जाएं, मर जाएं तो भी कब्र में एक ही कफन में जाएं, हाथों में हाथ डाल के बागे बदन में जाएं, बागे अदन, अदन मन मौत दबाग, जन्नत दबाग, मासूमों के लिए जो बना उस चमन में जाएं, मजहब को बादशाह ने बट्टा लगा दिया, हमने अमल से पंथ को अच्छा बना दिया। अगे जोगी साहब कहते ने कि वाहे गुरु का लाल हर एक जो हमको, हर एक हमको प्यारा है, मुनकर है जो खुदा से वो दुश्मन हमारा है,
भक्ति अकाल पुरख की जो भी विसारा है, राजा हो शाह हो उससे हमें किनारा है। अगे शैतान दे कहते ने कि फौजों पे नाज इन्हें, सुच्चानंद वर्गिਆਂ ਨੂੰ फौजा मतलब वजीर खान वर्गिਆਂ ਨੂੰ फौजां ते नाज है, ते सुच्चानंद वर्गिਆਂ ਨੂੰ देवी ते नाज है। फौजों पे नाज इन्हें, उन्हें देवी का मान है, आशिक है हम खुदा के हथेली पे जान है। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहंशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से, हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जबान से। अमृत बस जबर बस जोर तुमको छकाना नहीं हमें, हाँ सिख बाजबर तुमको बनाना नहीं हमें। आता किसी के दिल को दुखाना नहीं हमें, लड़ भिड़ के जमा करना खजाना नहीं हमें। शाही है अपने ठाठ मगर यूं फकीर है, नानक की तरह हिंदू वो मुस्लिम के पीर हैं। ਸੁੱਚਾਨੰਦ फिर उन्होंने भड़काਉਂਦਾ है वजीर खान ते दूजे दरबारियों ਨੂੰ, कहता है भाई क्या खूब है नवाब भी बातों में आ गए, उस बुत शिकन के बच्चों की घातों में आ गए। कहते हैं ये बुरा शाह हिंदुस्तान को, तुम देखते हो रहम से क्यों इनकी जान को। तकदीर फिर गई है तो कुछ अपना बस नहीं, इन पर दुहाई राम की खाना तरस नहीं। क्यों रहम करके लेते हो दोजख जहान में, खेचे हुए है तीर मुकद्दर कमान में। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਚਾਨੰਦ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, मरेरकोटले के नवाब सीगे शेर खान ते खिजर खान, दो भाई। शेर खान व खिजर खान पठान थे। मलेरकोटला के ये बड़े मशहूर खान थे। एक रोज रण में आके लड़े कुछ जवान थे, गोविंद इनके बाप की ले बैठे जान थे। नाजम ने सुच्चानंद ने उनसे कहा कि लो बदला बाप का इनके लहू को बहा के लो। पर वो सच्चा मर्द सी शेर खान उन नकार लगाता है, कहता है कि बदला ही लेना होगा तो हम लेंगे बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ समय है ਉਹਦੇ ਚ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਕਾ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਅਬ ਮਕਾਨ ਪਰ, ਮਚਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ जिथे उन्होंने शहीदी पानी है। इनका किस्सा लेके चले अब मचान पर, बुनियाद थी धर्म की खुदी जिस मकान पर। जल्लाद सारे कत्ल से बेजार हो गए, दीवार में चुनाने को तैयार हो गए। ईंटें बनाई चूना भी फौरन बहम किया, यारा नहीं बयान का फिर जो सितम किया। सतगुर के लाल बोले न छूना हमारे हाथ, गढ़ने हम आज जिंदा चलेंगे खुशी के साथ। हाथों में हाथ डाल के दोनों रूह निहाल, कहते हुए जबां से पढ़े सत श्री अकाल। चेहरों पे गम का नाम न था और न था मलाल, जा ठहरे सर पे मौत के फिर भी न था ख्याल। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव का हम हैं। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं सरों पर उठा चले। गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का हम पौधा लगा चले। गद्दी और तख्त अब बस कौन पाएगी, दुनिया से जालिमों का निशान तक मिटाएगी। सरताज दी कलम लिखती है कि जिगराओ इत्थों मिलिया सी छोटे फरजंदा नू, जयकारे लाਉਂਦੇ ਆਖੜ ਜੀ ਉਸਰਨ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ। क्यों नहीं सी निकिया उमरा दहशत विच दहलदियां, नीहां मजबूत कर गए ओ मजहब दे महलदियां। तकड़ी सरहिंद विच जाके मैं ओयो दीवार जी, एक दिन मैनू बंदा मिलिया कहंदा सरदार जी, सुनिया इस कौम च काफी कोई दिलदार जी। सतगुर सिंह लिखदा है, फतवे ला दिते कहंदे चिणदे विच कंधां दे, ओरा भी खौफ न दिसदा मुक्ते फरजंदा दे। गज के जद फतेह बुलाई बचिया नवाब नू, फतेह चो पैदा कर गए फतेहगढ़ साहब नू। जोगी जी लिखते ने कि जोगी जी इसके बाद हुई बस थोड़ी देर थी, बस्ती सरहिंद शहर की ईंटों का ढेर थी। क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने साहिबजादियां दा बदला लिया, वजीर खान नू सो दिया, ते सारे जिन्हां ने जुल्म कीता सी, शाशल बेग, वाशल बेग, जानी खान, मानी खान, इन्हां सारियां कोलों
ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।